Okay, so let's continue doing EM waves. Yesterday we finished numerical practice on displacement current. Yes, sir. And modified Ampere circuital law. Okay, so another thing we have to know about Maxwell is the Maxwell's equations. Okay, we've already done this, just being expressed in a different manner. So the branch of physics we're dealing with is electromagnetism. Electromagnetism, because it includes both electric field and magnetic field. Okay, first equation we've already done. Gauss law of electrostatics. E dot ds is equal to Q upon epsilon naught. We already know this. Yes, sir. Okay, so the electric flux through, this is the electric flux through any closed surface is 1 by epsilon times the charge. Okay. Yes, sir. What are the consequences of this law? इससे नतीजा क्या निकला? क्या क्या पता चला हमें? The charge on the insulated conductor resides only on its outer surface. The charge on an insulated conductor, okay, resides only on its outer surface. Second, the electrostatic force between two charges is inversely proportional to the square of the distance between them. Okay. So if you have a insulated conductor, okay, तो इसके ऊपर जो insulation की layer है, if you put a charge on it, that charge will not go inside. It will only stay on the surface. Yes. Metal, solid metallic होता तो अंदर चला जाता charge, but not in this. Okay. Wait, metal के केस में भी solid metal होता अगर solid metal spherical, shell के केस में तो directly बाहर होता है, अंदर रह ही नहीं सकता, it can't reside, it goes out, है ना? तो I don't know what is this insulated conductor, resides only on its outer surface. Okay, let's come back to this. Okay. Okay. This is Coulomb's law. सर आपकी आवाज कट रही है. The electrostatic force between two charges. Okay, maybe net problem. Is it better now? No, sir. बहुत No? कट रही है. Okay. अब कैसी है? बहुत ब्रेक्स आ रहे हैं, पता नहीं. वो तो यार नेट की प्रॉब्लम होती है. स्मूथ हुई क्या? हाँ, अब ठीक है. अब ठीक हुई थोड़ी. स्मूथ हो गई? हाँ, यस सर. Okay, maybe some net. और तो कुछ है ही नहीं. Okay, the second Maxwell equation is the equation of Gauss law of magnetism. ये तो Gauss's law है basically, जो पहला पढ़ा हमने. यस सर. Gauss law वही है कि explanation बहुत ज्यादा डिटेल में. Consequences, Maxwell ने क्या बोला? Gauss's law of magnetism, same law, but the difference is that
BDS is equal to 0. Okay? So what it means is इसके consequences क्या थे? ये हमने पढ़ा भी था कि magnetic poles do not exist in isolation. Consequences is there are no magnetic monopoles. क्योंकि नेट जो अगर मान लो if you have a magnet it is always north and south. So if you have a Gaussian surface, whatever field is going out is also coming in. ये तभी पॉसिबल है जब मैग्नेटिक डाइपोल हो, मैग्नेट्स एग्जिस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ. जितना Okay. बाहर जा रहा है उतना ही अंदर है. अगर सिंगल होता तो ये नहीं हो पाता, फिर नेट फ्लक्स आ जाता, बट नेट फ्लक्स आया नहीं. द कॉन्सिक्वेंस ऑफ गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म इज दैट magnets only exist as dipoles. There are no magnetic monopoles. ठीक है. We will come to the first one. What is he trying to say? Insulated conductor. अभी आते हैं वापस, ठीक है. पहले एक बस ठीक है. statement देख लेते हैं. What does he mean? Okay, the third is Faraday's law of electromagnetic induction. Now, this law tells us that changing the magnetic field induces an electric field. Faraday's law, d phi by dt. हम्म. EDL मतलब voltage is produced by cutting the magnetic flux. Magnetic flux को काटो और बिजली ले लो. यही बोला था उसने, ठीक है. right? हमने बोला था ना EMF is equal to minus d phi by dt. हम्म. और EMF क्या होता है? EDL होता है. मीडियल होता. So if there is a induced, what are the consequence? If there is an induced EMF set up in a closed circuit C, then it is equal to the, यहाँ पे देखो, rate of change of magnetic flux has produced EMF, हम्म. जबकि एम्पियर के अंदर rate of change of electric field produced a magnetic field ये चाहिए. equal to the rate of change of. मैक्सवेल ने सारे लॉस को इकट्ठा करके ना जो बाकियों ने बनाए थे हम्म. थोड़ी सी अपने एक कॉन्सिक्वेंस लिख दिए, क्योंकि हम्म. उसका दिमाग था वो सारे लॉस के ऊपर रिसर्च करना जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जिनमें थे, और उनको जोड़ना आपस में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को. Okay. Consequence, if there is an induced EMF set up in an enclosed circuit, then it is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the Coil. closed circuit. Okay. And fourth, of course, is the modified Ampere law, Ampere's law, अभी जो हमने पढ़ा. हम्म. Okay, this law implies that not only a conduction current जो वायर्स में होता है, हाँ. but a displacement current
associated with a changing electric field also produces a मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों कल हमने बी निकाला था, बीडीआर से एम्पियर का अच्छा। लॉ लगा दिया था। ठीक है। पहले तो यही पता था सिर्फ, ये एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया इसने, ये भी मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे सकता है, आईडी। ओके। Let's just see. So if they ask you what are the four laws and the consequences, this is what you need to write. Okay, let's just go through this. So this is nothing but summary of all what we have done so far. Gauss law of electrostatics, Gauss law of magnetostatics, Faraday's law of EMI and modified Ampere's law। इन चारों के बारे में उसने रिसर्च करी और उसने जो है अपना मैक्सवेल्स इक्वेशन इनका नाम रखा। उसका फोकस इनके ऊपर था, लिंकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। ओके, आई थिंक जो इसने लिखा है ना उससे बेटर ये है, इंसुलेटेड सरफेस एंड ऑल दैट। आई थिंक इफ यू आर आस्क्ड टू राइट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ गॉस लॉ, ये बेटर है, क्योंकि समझना बड़ा मुश्किल है बोल क्या रही है। यस सर। लेट मी जस्ट, आई थिंक ये थोड़ा इजी है। आई क्वाइट डिडंट लाइक हिज लैंग्वेज, इंसुलेटेड कंडक्टर। Instead, this appears to me as a better। ये पढ़ो जरा। एटलीस्ट ये पैलेटेबल है, जो हमें पता है कम से कम। यस सर। वो लिखा हुआ है कि जो हमें रियल, रीड दिस, फिजिकल सिग्निफिकेंस कॉन्सिक्वेंस, ये हमें कम से कम समझ है इसकी क्या बोल रहा है ये लाइन। यस सर। अभी तक हमने ऐसी क्वेश्चंस, मतलब किसी ने एफर्ट नहीं करा था जोड़ने का, जो इसने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ सबका फोकस। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो अभी आने वाली है ना, हाँ। वो इसी की क्वेश्चंस पे बेस्ड है। सबको इकट्ठा करा इसने, गॉस को भी देखा, इसको भी देखा, इनको पढ़ के इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बनाई थी। ही रेड ऑल ऑफ दीज। तो इसके क्वेश्चन ये थे कि व्हेन डज अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन इट इज टाइम वेरिंग, डी फाई बाई डी टी से वोल्टेज पैदा होती है, अगर जहां वोल्टेज होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर इसने पूछा व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट। व्हेन डज अ करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर सर्किट। So he had such questions in his mind, and he therefore looked at all the laws that dealt with these things. ओके। He was less focused on understanding Gauss law, but trying to put them together. Just give me 1 second. ओके।
यस। पढ़ लिए सब। पढ़ लिया ना, ठीक है। हम्म। मोर ऑफ मेमोराइजेशन देन अंडरस्टैंडिंग। हम्म। अब इसका देखने का तरीका ये था कि वो सारी क्वेश्चन उसने सारी इकट्ठी लिखी, जो अलग अलग लेवल पे काम हो रहा था। गॉस ने अलग काम करा था, हाँ। एम्पियर अलग काम कर रहा था। इसके दिमाग में ये था यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होते हैं। हम्म। तो वो कौन कौन से पुराने काम हो रखे हैं जिनमें ये सब कुछ है, तो उसने सारे इकट्ठे करे और इनको अंडरस्टैंड करके इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बनाई, ईएम वेव्स की थ्योरी। ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना जरूरी था। हम्म। दैट वाज हिज मतलब एम। ठीक है। ओके। मोर सोफिस्टिकेटेड फॉर्म। रीड दिस once more. First is the Gauss law. हाँ। पढ़ा? गॉस लॉ पढ़ लिया। ठीक है। ये तो वही वाला है, सेम हम्म। जो हमने पढ़ा हुआ है। ये सब।
पढ़ लिया सर। ओके। Can we say that a changing magnetic field creates a changing electric field? हाँ, कह सकते हैं। कह सकते हैं, यस। So his focus was on studying the behavior of electric fields and magnetic fields and how they're linked to each other. ओके। That was his focus. And let me tell you what exactly then happened. तो मतलब मैक्सवेल ने अपना दिमाग क्या लगाया इन सबको पढ़ने के बाद? Okay? हम्म। तो उसने दिमाग लगाया कि जहां जहां टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा टाइम वेरिंग, एंड वाइस वर्सा। तो ये हम्म। इसने वायर ली और इसमें एक ऑल्टरनेटिंग करंट भेजा। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड देखो उसके चारों तरफ बना हुआ है बी नॉट। यस सर। उसने बोला देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा बी नॉट। वो आ गया फैराडेस लॉ ऑफ ईएमआई से। देन द देन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट सोर्स फॉर, तो ये आपके क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गए। और a field line representing E naught is shown. In turn, the changing creates a magnetic field B1. तो अब ये E naught पैदा हो गया क्योंकि there is a time varying magnetic field here due to the current यस in the सर। wire. उसने E naught पैदा कर दिया। हाँ। अब क्योंकि टाइम वेरिंग E naught आ गया तो उसने B naught पैदा कर दिया B1। हम्म। अब क्योंकि B1 है तो उसने आगे E1 पैदा कर दिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। रीड दिस पैराग्राफ, ओके। ध्यान से पढ़ो इसको कि कैसे स्टार्ट होता है बी नॉट से जो पैदा करता है ई नॉट, और ई नॉट से बी वन पैदा होता है, और वो प्रोपोगेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वन थिंग यू कैन सी, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक हाँ। गोला ऐसे पड़ा हुआ है, एक उसके परपेंडिकुलर है। हम्म। एक जमीन पे बी नॉट इज हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड, ई नॉट इज परपेंडिकुलर टू इट। यस सर। रीड इट केयरफुली, देखो कैसे ही शोइंग सम वेव विच इज ट्रेवलिंग ऑफ ऑल्टरनेटिवली बी नॉट बी वन बी टू। बी नॉट ई नॉट को बनाता है, ई नॉट आगे बी वन को बनाता है, बी वन आगे ई वन को बनाता है।
ये किसी भी तरह से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठे कर रहा था। ये दोनों ही चाहिए होते हैं, दोनों ही इकट्ठे होते हैं। फिर आइंस्टाइन ने भी कुछ काम करा था, तब जाके ये थ्योरी बनी थी ईएम वेव प्रोपोगेशन की। हमारे ओके। कोर्स में नहीं है वो सब कुछ, बस नाउ जस्ट सी, रीड इट केयरफुली, एक बार पढ़ लो इसको कि व्हाट डू यू थिंक। So B naught is the start point, resulting in generation of E naught, then B1, E1, B2, E2। एक दूसरे को एक दूसरे ने पैदा करा है। हम्म। यस सर। दिख रहा है, इट्स अ सेल्फ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, सर। हाँ। एंड सम रीजन हैज गॉट जनरेटेड of time varying electric and magnetic field farther from O। हम्म। यहां से शुरू हुआ था ओरिजिन से, और कहां पे पहुंच गया ये, इस तरफ ट्रेवल होता जा रहा है। हम्म। ये प्रोपोगेशन हो रही है ईएम वेव की। ईएम वेव यही होता है, एंड ईएम वेव इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। This is यस the सर। way it propagates. Got it? ठीक है सर। अब थोड़ा बहुत सेंस आ रहा है कि इसने सारे लॉस को इकट्ठा करा, हम्म। और फिर सारे लॉस से वो अ, कुछ और थ्योरी बना बना रहा था कि ऐसा लगता है उसको चारों लॉ को स्टडी करके कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज नीड टू बी टुगेदर। हम्म। So his focus was not laws, but his focus was using the laws to create a electromagnetic wave theory. That is what he was aiming at. ओके। In conductors, the electric field is zero inside the material. True or false? It is true, right? ट्रू। Conductor में true, because the charge redistributes itself on the surface. और अगर इंसुलेटर हो, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, उसको चार्ज दोगे, वो तो हिल भी नहीं सकता अपनी जगह से, राइट? सो इन अ इंसुलेटर द चार्जेस रिमेन लोकलाइज्ड, दे डोंट मूव। करेक्ट। मेटल के अंदर आप, कंडक्टर के अंदर आप नहीं पैदा कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इंसुलेटर में कर सकते हो। इफ यू हैव दिस मेटेलिक स्फीयर, you place a charge here, it'll charge will come out, right? इधर आ जाएगा ना। करेक्ट। लेकिन अगर आपने इसको कंडक्टर में रख दिया, दिस इज नॉट अ मेटल, फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लास्टिक शीट, you keep a charge here, it will not go out, it will stay where it is, ठीक है। it will not come on the surface। ये इंसुलेटर है, ये मतलब प्लास्टिक का पेपर है मान लो, आपने उसका स्फीयर बना लिया, अंदर चार्ज रखा, दैट चार्ज विल नॉट कम आउट, क्योंकि चार्ज मूव भी नहीं कर सकता यहाँ पे इन अ इंसुलेटर, इट डजंट अलाउ कंडक्शन। Read this very interesting
line which I was saying. Yeah, this is a will go off to sleep again it seems. ईएम वेव 4 बार किसी को पढ़ा दो उसकी स्लीप थेरेपी हो जाएगी, वो कहेगा मैं ठीक हो गया हूँ। मुझे नींद बिल्कुल। आती है। बिल्कुल। न्यूमेरिकल ही नहीं है। हम्म। The equations provide a complete picture of electromagnetism and are used to study a wide range of electromagnetic phenomena, including EM waves and their interactions with the. पढ़ लिया सब। तो यही डायरेक्शन थी इसकी सोच की। और 1865 में इसने प्रेडिक्ट कर लिया कि ईएम वेव्स होती हैं। ठीक है। ये पढ़ते पढ़ते ना हम्म। ही रीच दिस कंक्लूजन कि भाई ओके। होता तो है कुछ, प्रेडिक्ट कर लिया। हम्म। वही 4 इक्वेशन ने यार जान खाई हुई है, जा नहीं रही। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज नाउ। ठीक है। रीड दिस आल्सो। रीड दिस, आई जस्ट बी बैक। हाँ जी। बढ़िया सब। आई थिंक दिस इज बेटर ऑफ द अदर लैंग्वेजेस। कह थोड़ी सकते हैं तो। सिंप्लीफाइड नहीं है, हम्म। इतना ज्यादा परेशान नहीं करा।
Yes, sir. Okay, let's move on now. Okay. एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये वर्ड देख लेना, which I wanted to highlight to you is so how are magnetic fields generated? Okay, ये जो मुझे बहुत बढ़िया लगा, ये वाली लाइन. Okay, especially I want to draw your attention to this. If there is a moving charge also, which is like a current only, moving charge. Magnetic fields are generated by moving charge also, not by just by d phi by dt, क्योंकि dq by dt अगर मोशन में है वो भी पैदा करेगा. सो देर आर टू वेज टू जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड. ये वाला तो हमने पढ़ लिया है एम्पियर में, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. बट जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा था, डू यू रिमेम्बर, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा था उसमें जो पोलराइजेशन हुई थी, उसमें चार्जेस अपनी जगह से पोलराइज होके इधर उधर हिल गए थे. डिस्प्लेसमेंट, देयर वाज अ पोलराइजेशन एंड displacement of the charge. Do you remember it? Then Garvit, I can't hear you. हेलो. हाँ जी, you were not audible यार, अच्छा. गुम हो ओ, गई थी आवाज. याद है मुझे. हाँ. है ना, वो पोलराइजेशन होती है हम्म. तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ माइनस प्लस माइनस प्लस. हम्म. कल ही हमने न्यूमेरिकल भी करा था कि करा इतना था. प्रोपोर्शन लेना है एरिया का. हाँ. तो मेमोराइज दिस, दैट मैग्नेटिक फील्ड्स आर जनरेटेड बाय मूविंग चार्जेस आल्सो. ठीक है. ओके, ठीक है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग EM wave. ओके. I'm just showing you the diagram of how the EM wave propagation looks like. वो जो हमने परपेंडिकुलर देखा था E और B, हम्म. पहले B0 फिर E0 फिर B1, फिर वो ऐसे ऐसे जाता जा रहा था. हाँ. Just looking at NCERT. Yes, वही डायग्राम looks like this when we use more physics. Okay, so if you look into this,
दिस इज द वे इट ट्रेवल, E हम्म, being perpendicular to B. ओके। E दिख रहा है XZ प्लेन में, XZ प्लेन, यस सर। और जो B है दैट इज इन YZ प्लेन, परपेंडिकुलर, एक दूसरे के हम्म, ऐसे होते हैं ये। ठीक है। एक जमीन पे लेटा हुआ है और एक स्टैंडिंग है। हम्म, देखो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन Z है, हम्म, E की ऑसिलेशन जो है वो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मूविंग इन X एक्सिस, ऊपर जा रहा है नीचे जा हम्म, रहा है X और Y में, ऐसे है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लू रंग का, करेक्ट। X एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, और हम्म, B जो है इट इज ऑसिलेटिंग अलोंग Y, हमारी तरफ आ रहा है फिर अंदर जा रहा है, हमारी तरफ आ रहा है अंदर जा रहा है, लेकिन EM वेव जो है वो Z की तरफ जा रही है। ओके। तो E and B are oscillating in X and Y, and but the wave is moving in Z. ठीक है। Okay. So what are the equations of these waves? 11th standard में there is a topic which is called as the topic of standing waves. Okay. हम्म, उससे इंस्पायर्ड है, ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। These you have to memorize this. जो ओके। X में जा रहा है E, उसकी इक्वेशन की वेव ये है, और जो Y में जा रहा है उसकी ये है। K का फॉर्मूला देख लो, क्या ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, हम्म, इस पे न्यूमेरिकल आएंगे, सो यू कैन रीड ठीक फ्रॉम है। हियर। ई एक्स, इस पे न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है सर। दिस इक्वेशन इज ऑफ द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम्म, सम वेरी इंपॉर्टेंट inferences that also need to be known, and इस पे भी न्यूमेरिकल आएगा, और these look at the speed of propagation of the wave। वेव यस सर। EM वेव की क्या स्पीड है? वे कहा बाय टी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द K। C क्या होता है? लाइट की वेलोसिटी, हम्म, परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये याद रखना इक्वेशन, ठीक है सर। बहुत काम आएगा। हम्म, ये तो पता ही है, C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। ये ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
मीडियम डिपेंडेंट है, इफ यू चेंज द मीडियम पुट अ डिफरेंट मीडियम हियर, जैसे म्यू आर डाल देते हैं ना, या डाइलेक्ट्रिक के टाइम्स। ये वैक्यूम के लिए लिखा है इसने, व्हेन द वेव ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम। ओके। हम्म। रीड दिस केयरफुली इन लेट्स डिस्कस। क्वेश्चन पढ़ लो। So the wave is traveling in a certain, अच्छा, ये एक्स एक्सिस में है वेव। हम्म। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा उसमें जेड में थी, यस सर। ये एक्स में जा रही है, ठीक है, जा रही है। इसका मतलब दोनों वेक्टर बाकी जो ई एंड बी है वो वाई और जेड में होंगे। हम्म। तो ई का तो इसने बता भी दिया, करेक्ट। वाई में है। हम्म। तो इफ ही ट्रीट्स, इसी का अगर हम कॉपी कर लें तो इसने जेड इसका नाम रखा हुआ है। एनसीईआरटी को देख लें अगर हम यहाँ पे, तो एनसीईआरटी ने जेड ये रखा हुआ है ना, हम्म। एक्स ऊपर रखा हुआ है, तो हम भी वही कर लेते हैं, एक्स एंड वाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका वाई एक्सिस में है, देखो क्वेश्चन के हम्म। अंदर ये रहा। 6.3 जे, ये वाला इस डायरेक्शन में ना, मतलब ऐसे हम्म। यूं जाएगा वाई में, तो करेक्ट। वाई में ऐसे जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये तो एक्स वाई प्लेन में बना दिया मैंने। वेट, तो जे तो जेड है, हाँ सॉरी। ये जे, आई जे के होता है ना, नहीं जेड इज के यार। ओ नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया। यूं होगा, यूं लेटा हुआ, ठीक है। ये हो गया हम्म। इलेक्ट्रिक फील्ड। वेव इधर जा रही है, और इसका मतलब जो वो है बी, हम्म। बी हैज टू बी जेड देन। हाँ। तो ये होता है जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई और बी शुड बी अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। तो ई टू बी जाए अगर हम, अगर मैं यहाँ ई पे हूँ, ये ई है मेरा, और मान लो मैं बी यहाँ ट्रीट कर लेता हूँ, बी यहाँ पे है मेरा जेड में, तो मेरा बी अगर यहाँ पे है ऐसे, तो ई टू बी अगर मैं गया, ई टू बी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जो है ई क्रॉस बी का इधर आ जाएगा ना फिर। हम्म। ओपन द बॉटल्स, जार का जो ढक्कन है ऐसे खोलोगे अगर, तो ऊपर की तरफ जाएगा, ई टू बी में ट्रेवल करेगा। ये भी एक करेक्ट। बहुत अच्छा हिंट है कि ई क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव होती है। हाँ। इस वेक्टर का ई क्रॉस बी का जो है, तो ई क्रॉस बी ऊपर जा रहा है, एक्स में ही जा रहा है। हम्म। तो बी देयरफॉर, बी इज इन दिस डायरेक्शन। देखो ना, वी नीड, हाउ कैन वी गेट, ई का हमें मालूम है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ई, हम्म। जे दिया है ईस्ट ऑफ। क्वेश्चन में। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, आई। करेक्ट। तो मुझे चाहिए कि जे क्रॉस बी का डायरेक्शन शुड बी आई। वो कैसे हम्म। पॉसिबल है, आई जे के अगर मैं बनाऊं, तो जे क्रॉस के करूंगा तभी तो आई आएगा ना। करेक्ट। तो बी इज इन के डायरेक्शन।
हम्म। देखो ये डायग्राम, देखो ये वाला, ये लुक एट दिस। यहाँ पे E इज इन एक्स एक्सिस, हमारा E अभी Y था क्वेश्चन में, J में, हम्म। तो हमारा E यहाँ पे है, E। ठीक है। अच्छा, हमारा जो वो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो I में है, मतलब वो इधर है। हम्म। ये सिचुएशन है हमारी। तो हमारी जो आई जे क्रॉस आई जे के, जे में एक है, के में एक है, सॉरी, हमारा जो वो है मैग्नेटिक फील्ड वो यहाँ पे है। ठीक है। तो प्रोपोगेशन इधर होगी। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम्म। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर दिया ना क्वेश्चन। हम्म। यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वाई में, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में था। हाँ। तो यही वेव जो हमारी इधर है, तो अब वो ट्रेवल जेड की जगह इधर ट्रेवल कर रही है। इतना फर्क कर दिया क्वेश्चन में। द ईएम वेव ट्रेवल्स अलोंग, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ लो ध्यान से। विच डायरेक्शन इज द वेव ट्रेवलिंग, नोट दैट, फर्स्ट लाइन में एक्स डायरेक्शन। हम्म। तो ये जो चीज यहाँ बनी है, इसको अगर हम रोटेट करके सारी फिगर को, ये वाली फिगर को बेसिकली घुमा के इधर ले आए अगर, हम्म। दैट इज व्हाट ही मीन्स। ठीक है। लेट्स गो बैक। तो ठीक है, डायरेक्शन भी मालूम है, प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईएम वेव इज गोइंग इन एक्स एक्सिस। हम्म। ठीक है, आगे पढ़ो क्या लिखा है। फ्रीक्वेंसी भी मालूम है उसकी। हाँ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी मालूम है, मैग्नीट्यूड भी मालूम है। यस सर। देखो इसने क्या रूल लगाया है। बी इज इक्वल टू ई प्लस। वी डोंट नो दिस, हम्म। ये भी हमने पढ़ा नहीं है। नहीं पढ़ा। सो लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू दैट, ये आया कहाँ से। क्योंकि हमने सिर्फ व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार इज जस्ट इक्वेशंस। हमने दो हम्म। इक्वेशन पढ़ी हैं, एक यस सर। ये वाली और एक ये वाली, दो। हम्म। ओके, सो लेट मी जस्ट रीराइट दिस। ई, ये जनरल है, ओके। ई इज इक्वल टू, लेट मी गो बैक देयर एंड रीराइट दिस। यहीं पे राइट साइड पे लिख देते हैं इसके, जहाँ इक्वेशंस आई है ना दोनों, ये वाली इधर। हम्म। सो यू कैन सी बोथ ऑफ देम आर इन फेज। ये जेड है बाय द वे, के जेड, ठीक है। जेड एक्सिस पे है ना, यहाँ पे देखो वेव हम्म। की प्रोपोगेशन।
So both are in phase. You can see the angle in the sign is identical, Correct. right? So both electric field and magnetic field are in phase. Hmm. ठीक है? And how are the magnitudes linked to each other? E naught and B naught. ये जो E X और B Y है आपस में इनको डिवाइड करो. ओके. मैंने इन दोनों को डिवाइड करा. बिकॉज बोथ आर अटेनिंग देयर मैक्सिमा मिनिमा एट द सेम टाइम. देखो बी का मैक्सिमा यहाँ पे अभी और इसका भी यहाँ पे है. ठीक है. So they attain a maxima together, they attain a minima together, so they are in phase. हम्म. इन दोनों को डिवाइड करा, E by B का आंसर है their link is this. So this equation is very important. ठीक है और सर. इनका मैक्सिमा को भी अगर डिवाइड कर लो, that also gives you the C. The ratio of the electric field and the magnetic field at any point on an EM wave gives you velocity of light. So go back to the numerical and see this now. इस numerical को अब ध्यान से पढ़ो. क्या पूछ रहा है? Knowing that E by B is C. दिया है कि it's an EM wave, it has a frequency. डायरेक्शन चेंज कर दिया थोड़ी, एक्स हाँ. डायरेक्शन में कर दिया. हमारी जो फिगर है उसमें जेड में जा रही है ईएम वेव. ठीक है. इसकी ईएम वेव यहाँ जा रही है. चेंज कर सकते हैं ना ईएम वेव की, हम्म. मतलब कुछ भी कहीं भी प्रोपोगेट डायरेक्शन हो सकती है. तो करेक्ट. कोई यहाँ भेजना चाहता है यहाँ भेज ले, ठीक है, उसकी मर्जी है. हम्म. हम यूं भेज रहे हैं. तो दोनों वेक्टर्स जो बाकी हैं ई और बी, वो फिर इन हाँ. दो एक्सिस में हो जाएंगे. और उसमें से इसने ई का भी वेक्टर दे ही दिया है कि ई इज इन वाई एक्सिस. करेक्ट. ओके, रीड इट. इनफैक्ट रीड इट एंड ट्राई टू राइट इट. सी, ई क्रॉस बी का भी रूल समझ में आ गया हम्म. कि ई क्रॉस बी का जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. हम्म. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ई क्रॉस बी, उसको भी यूज करो.
ऐसी वेव्स जो होती है ना जिसमें उनका जो वेक्टर होता है, हम्म। वो ई और बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ऐसी वेव्स को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। सो ईएम ओके। वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। मतलब प्रोपोगेशन जेड में हो रही है जो ऊपर थ्योरी थी। हम्म। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हैं, हम्म। परपेंडिकुलर। ये सब। ये एक्स में है, ये वाई में है। प्रोपोगेशन दोनों के परपेंडिकुलर है, एक्स और वाई के। हम्म। तो ऐसे में बोलते हैं कि सच वेव्स वेयर द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द ई एंड बी वेक्टर, इसमें दीज आर कॉल्ड हम्म। ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स। वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स। कैन यू ट्राई एंड राइट इट, दिस आंसर? मैं अच्छा, कोई ठीक जल्दी है। नहीं मचा रहा इसमें। ठीक है। लिख के देखना जरा। आर यू एबल टू मेक सेंस ऑफ दिस और यू फील लॉस्ट? ओके। नीचे सोल्यूशन है वैसे, बट क्या रिलेशनशिप, जैसे एक तो बी इज इक्वल टू ई बाय सी याद रखना है। हम्म। न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर। ओके। यू कैन राइट इट, यू विल बी एबल टू डू इट। हम्म। टेल मी वेयर यू फील स्ट्रक। ये तो फॉर्मूला में पता है। तो दो चीजें कर रहे हो, एक तो बी निकाल रहे हो और बी की डायरेक्शन भी तो डिसाइड करनी है ना। यस बी इज सर। अ वेक्टर, तो यू जस्ट कांट लीव इट। ये हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे जी।
ठीक है, सो यू नो द वैल्यू, यू नो द डायरेक्शन, नाउ यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ बी, बट यू नो कि ई क्रॉस बी जो होता है उस वेक्टर की डायरेक्शन प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है। मैं अगर होता तो सबसे पहले यू नो व्हाट आई वुड राइट, आई में है ना एक्स एक्सिस में, हम्म। दूसरी चीज में डायरेक्शन के लिए लिखता द डायरेक्शन ऑफ ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, जे हाँ। दिया हुआ है, यस सर। और मैं लिखता टू फाइंड कॉन्सेप्ट। जे क्रॉस के विल गिव यू आई, राइट? हम्म। देखा कैसे लिखा है मैंने, हम्म। स्टेप्स में क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, बता दो अगर समझ में नहीं आया ये तो। नहीं ऑर्डर। आया? यस सर। ओके, सो आई एम नॉट मूविंग एट सुपरसोनिक स्पीड, मूविंग वेरी स्लो सो दैट यू कैन स्कोर फुल मार्क्स। ये चैप्टर जो है ना, अगर डिफिकल्ट है तो द हम्म। ट्रिक इज देन ओके, इफ यू आर डिफिकल्ट देन वी विल टैकल यू थ्रू, यू नो, वी विल गो स्लो, वी विल नॉट रन, वी विल ट्राई टू रिपीट इट एंड वी विल, रेपिटेशन से कई बार समझ में आ जाता यस सर। है ना, कई बार लगता है कि बहुत मुश्किल है लेकिन रिपीट करते करते कुछ ना कुछ तो बैठ ही जाता है दिमाग में। हम्म। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, रीड इट, देन गो टू द थ्योरी अबव, इक्वेशन मालूम है, रिले थोड़े बहुत रिलेशनशिप भी पता चल गए, ओमेगा मालूम है क्या होता है, वही ओमेगा ही लिखा हुआ है इसने बाय द वे। ओके, हम्म। अच्छा ये देखा, ये नोट करा, ये वाली जो वेव है ये जेड में नहीं है, हम्म। ये एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, यस सर। मैग्नेटिक फील्ड से पता चल गया ये एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है ये भी। ठीक है, रीड इट, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, राइट डाउन ऑल द गिवन क्वांटिटीज, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड प्लीज, ओके। करते रहो।
फर्स्ट पुट ऑल व्हाट इज नोन टू यू। गर्वित, हम्म जो जो दे रखा है कम से कम उसको तो लिखो। हम्म वॉट एवर इज नोन टू यू, जो डेटा अवेलेबल है। यस सर।
ठीक है, 2 पाई बाय k f इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, फ्रीक्वेंसी यही निकालने को बोला है, फ्रीक्वेंसी। ये सब हाँ बढ़िया लिखा है, k दिया है, दिया है, दिया है, दिया है, लैम्डा निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी ठीक है। और क्या निकालना है सेकंड पार्ट में? एक्सप्रेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन, मतलब ये वाला निकालना है, ये वाला, ये दोनों इक्वेशन में से ये वाला निकालना है ना। हम्म। ये सब ठीक है, सेम ही होता है, सिर्फ ई की जगह बी लिख देते हैं आई थिंक, और डायरेक्शन भी लिख देते हैं बी की। ठीक है। जेड दी है ना ई की डायरेक्शन, सॉरी, ई का निकालना है, और एक रिलेशनशिप ये भी तो पता है कॉन्सेप्ट। हो जाएगा। समझ आ गया या ऊपर हम्म। से निकल गया? नहीं, हो जाएगा। ओके, मैंने आराम आराम से करवाया है, कोई जल्दी नहीं मचाई है कि खत्म करो खत्म करो, ऐसा कुछ नहीं, कोई टाइम ही टाइम है अपने पास, चिंता नहीं है मेरे को कोई खास, हम्म। सीख लेंगे हम। हाँ जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। अब आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए हैं। यस। अब मुझे बहुत पसंद है भाई न्यूमेरिकल करना, हम्म। ये तो पोथे हैं पोथे। ओके। हाँ जी, 8.4। थ्योरी या तो वो जो क्रिस्टल क्लियर हो, हम्म। पढ़वा रहे हैं पीएचडी लेवल का, और उसमें से काटा पीटी कर रखी है सारी, पूरा समझा हम्म। भी नहीं सकते आप किसी को, क्योंकि वो कुछ और ही लेवल है जो थ्योरी है, स्कूल लेवल है ही नहीं। जेड एक्सिस में फॉर अ चेंज, ये तो सब। जो एनसीईआरटी में इक्वेशंस हैं वो यूज कर सकते हैं हम, पर इसने पूछा तो डायरेक्शन पूछी है, तो मतलब बी क्रॉस ई मस्ट बी जेड, हम्म। तो जो एनसीईआरटी में डायग्राम है वो वैसे का वैसा, उसमें जेड में ही जा रहा है ना ये। ये सब। भाई इफ यू लुक इनटू द एनसीईआरटी डायग्राम, ऊपर है हमारी पेज पे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है और बी वाई में है, हम्म। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, बी वाई में, और प्रोपोगेशन जेड में। हाँ। तो आंसर भी ये हो गया, वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स, एक्स। मैग्नेटिक फील्ड हाँ। इज इन वाई। ये सब। तो वी कैन से अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हम्म। फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ, ये सब। दिस डायग्राम, ये वाला,
आई होप यू नो विच डायग्राम आई एम रेफरिंग टू. हाँ दिख रहा तो राइट इट डाउन, डोंट वरी. है। क्वेश्चन यस। सॉल्व करने के लिए ड्रॉ द डायग्राम. जो वेव का डायग्राम है एनसीईआरटी का, हम्म। ड्रॉ इट. ओके। मतलब तीनों एक्सिस ड्रॉ करो और डायग्राम ड्रॉ करो और जेड में जाता हो दिखाओ. डी और ई दिखाओ, वही ब्लू और वाइट में. और प्रोपोगेशन की डायरेक्शन दिखाओ. सेम टू सेम डायग्राम कॉपी कर दो. ई इज एन एक्स. ई इज एन एक्स एक्सिस. एक्स और वाई में ऑसिलेट कर रहा है. ये आपका एक्स है, मैंने बना दिया है वैसे एक्सिस, इफ यू सी. यस सर। ये जेड है, वाई. बनाओ डायग्राम. मेक. ठीक है. एक को वो दिखाओ यार, एरोस दिखाओ इसके. वो ड्रॉ कर रहा हूँ अभी। अच्छा. कॉपी करना और कुछ नहीं करना, एरो दिखाना जरूरी है ऊपर और नीचे. हम्म। वो ऊपर जा रहे हैं, एक में एरो जा रहे हैं ऐसे, एक में ऐसे जा रहे हैं. एक को हम्म। कलर अलग दिखाओ या तो, जिससे कि डेप्थ नजर आए थोड़ी सी.
सही है। ऐसा तो नहीं लगा जल्दी जल्दी कर दिया टॉपिक? नहीं सर। जब रिवीजन करवाऊंगा तो तुमसे ही करवाऊंगा पूरा मैं रिवीजन। तुम मुझे सिखाओगे। यस। अपने सामने करवाऊंगा क्वेश्चन सारे। अभी तक तो तुम करते रहे हो ना बैकग्राउंड में, टेस्ट पेपर असाइनमेंट बैकग्राउंड में हो रहा है सब। यस। अब मेरे सामने करना है, उसी असाइनमेंट से खोल के करवाऊंगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कहीं से भी पूछूंगा। ऑब्वियसली एग्जाम्पलर में वो नहीं करेंगे जो जेई एडवांस टाइप के हैं। एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट, मैच द फॉलोइंग, रीजनिंग असर्शन, पैराग्राफ। ठीक है, डायरेक्शन में ई और बी लिखा ही नहीं, मार्क ही नहीं करा ओ भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है इनमें से, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? अच्छा अच्छा ओ। प्रोपोगेशन जेड में मान ली। और कलर अच्छा। भी नहीं अलग यूज करे, और ई और बी मार्क भी नहीं करा, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा बड़ा तगड़ा। ट्रांसवर्स वेव। ई कौन सा है, बी कौन सा है, डायग्राम में देखो जाके। हाँ ठीक है, ये बेटर है। मैं एज एन एग्जामिनर समझूंगा कैसे कि कौन क्या है, मुझे क्या पता चलेगा? यस। हम्म, नहीं नहीं, यहाँ तक नहीं। अगला भी पिंक करो उसका वेक्टर। ये ई बनाया, बी बनाया? नहीं, गलत 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 गलत। इसका ये वाला वेक्टर अब ओ यहाँ आ सॉरी गया। गलत समझ आया? हाँ, यहाँ आया वो घूम के ऑसिलेट करके, जैसे नॉर्मल साइन वेव होती है वो है ये। यस। नॉर्मल साइन साइन दोनों साइन में, एक लेटा हुआ साइन है, एक स्टैंडिंग है। सही है। ठीक है। मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी वैसे। यस सर। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई विल टेल यू, रीड इट, इट विल गिव यू वेरी गुड इंसाइट इनटू व्हाट द हेल इज हैपनिंग। ईएम वेव तक आते आते एक बड़ा सटल चेंज हुआ है। हाँ। लेट मी शो यू। पढ़ो जरा। स्टेशनरी चार्जेस क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम पढ़ चुके हैं। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर
चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कितने सारे पढ़े हमने। हाँ। स्क्वायर पे, ट्रायंगल में, ऐसे कितने थे मतलब कॉन्फ़िगरेशन। प्लेनर ये सब। शीट, वॉल्यूम, स्फीयर। देखो, देन वी स्टडीड दैट मूविंग चार्जेस क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हम्म। करंट, एम्पियर लॉ, बायोट हाँ। सेवर्ट लॉ, बी का फॉर्मूला म्यू नॉट I1 divided by, due to a circular loop, due to a infinitely long wire carrying current. तीसरा हमने पढ़ा एक्सेलरेटिंग चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ। लास्ट में अभी ये पढ़ा हमने। तो चार्जेस की ताकत देखो, अगर वो बैठे हुए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं, अगर वो करंट की फॉर्म में दौड़ रहे हैं एट अ कांस्टेंट स्पीड तो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। और तीसरा, दे क्रिएट EM वेव्स। हाँ। इस चैप्टर तक आते आते हम शुरू हमने करा था जब फिजिक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बारे में पढ़ा था पहले 2 चैप्टर्स में, इलेक्ट्रिक हाँ। फील्ड। ये सब। फिर हम मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में गए तो वहां पे चार्ज जो है वो करंट बन गया, dQ/dt, और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा हमने। हाँ। इस चैप्टर तक आते आते ना चार्ज स्टेशनरी है ना मूविंग है, एक्सेलरेटिंग है। हाँ। और एक्सेलरेटिंग चार्ज इज प्रोड्यूसिंग EM वेव्स। ठीक है। सो इफ ठीक है। यू सी द वर्ड, so there is a source of EM wave which is an accelerating charge. If a charge accelerates with some acceleration, it will produce the EM wave. तो EM wave के sources क्या होते हैं, कैसे EM wave को पैदा करते हैं, हर्ट्स ने एक एक्सपेरिमेंट करा था। हम्म। राइट, वी विल डिस्कस दैट लेटर, बट आई थिंक आज के लिए बहुत है ये। हाँ। ई बी, कुछ रिलेशनशिप, कुछ इक्वेशंस, ट्रांसवर्स वेव, कुछ मैक्सवेल की सोच क्या थी, ई और बी को इकट्ठा करके, और 4 लॉ का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या था। हाँ। एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो है वो है मैग्नेट मैग्नेट वाला, जिसके अंदर टोटल फ्लक्स इज जीरो, बिकॉज नॉर्थ पोल से जो बाहर जाता है वो इधर से आता है, तो नेट फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, द मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो। दिस लॉ प्रूव्स दैट मैग्नेट्स ओनली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइपोल्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ मोनोपोल्स। ठीक है। ठीक है जी, ये सब। प्लीज रिवाइज इट एंड लेट्स मीट इन द इवनिंग टू कंटिन्यू द डिस्कशन। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय।